انسانیت کی کیا جانے، وہ جو کتوں سے پیار کرتے ہیں، کتا لختے جگر ہے صاحب کا، اس سے بوس و کنار کرتے ہیں۔ جو دانش مند ہیں وہ یوں دعا دیتے ہیں لڑکوں کو، نہ ہو مکار پیری میں، نہ ہو عاشق جوان ہو کر۔ جوانی کی دعا لڑکوں کو ناحق لوگ دیتے ہیں، یہی لڑکے مٹاتے ہیں جوانی کو جوان ہو کر، یہی لڑکے مٹاتے ہیں جوانی کو جوان ہو کر۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستاں والو، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ عورتوں کے حوالے سے دو پیغام سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ لاٹھی سے خبر لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اس پر بھی ہاتھ اٹھائے، بتائیے لاٹھی کھانے کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ لاٹھی بھی لگا دے گا۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ عورت کے اندر کیا خوبی ہوتی ہے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ عورت کی قدر کیجئے، ورنہ جب بیوی مر جائے گی تب آپ کو خون کے آنسو رونا پڑے گا۔ عورت کی قدر پوچھئے، اس بچے سے ماں کی قدر پوچھئے جس کی ماں مر گئی ہے، اس بوڑھے سے جورو کی قدر پوچھئے جس کی جورو انتقال کر دی۔ بہت عجیب چیز ہے عورت، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں کتنی قیمتی چیز ہوتی ہے۔ یہ موتی ہے، موتی، اس میں پانی ہوتا ہے، اس لیے وہ سونا سے بھی زیادہ قیمتی، چاندی سے بھی زیادہ۔ وہ پانی اگر نکل جائے اس موتی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جس عورت کے اندر شرم و حیا ہو، اس عورت سے بڑھ کر کے نہ موتی ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، ساری دولت سے بڑھ کر کے۔ جس عورت کے پاس شرم و حیا ہے وہ باغ کی طرح ہے، جس میں پھول بھی آ رہا ہے، پھل بھی آ رہا ہے۔ عورت کا سونا، عورت کا ایمان۔ کسی عورت کے پاس اگر سونے کا زیور نہیں ہے، اس کے پاس ایمان ہے، تو سونے کے زیور سے بڑھ کر کے اس کے پاس دولت موجود ہے، ایمان کی دولت موجود ہے۔ تیسری بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ کون سی عورت نیک عورت ہے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کی زبان بہت میٹھی ہے، یہ بہت نیک عورت ہے۔ اس کے دل میں نیکی بہت ہے، دل اس کا نیک ہے، یہ عورت نیک ہے۔ اس کی آنکھ میں حیا ہے، یہ عورت بہت نیک ہے۔ اس کا کام ہر وقت اس کا ہاتھ کام میں لگا رہتا ہے، یہ عورت نیک ہے۔ بیٹی کی طرح شوہر کی خدمت کرے، ماں کی طرح اپنے شوہر کو چاند سمجھے، دوست کی طرح شوہر پر قربان ہو، عاشق کی طرح اپنے شوہر کو چاہنے والی۔ دیکھیے جب بھی نکاح کیجئے گا تو عورت میں تین چیز کو دیکھ کر کے نکاح کیجئے گا۔ عمر کم ہونا چاہیے، مال کم ہونا چاہیے، مال کم ہونا چاہیے، عمر کم ہونا چاہیے، علم کم ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے نکاح کر لیا اس کی عمر زیادہ ہے تو آپ کو نقصان ہوگا، آپ ہی کو ڈھونا پڑے گا۔ مال اس کے پاس زیادہ ہے، علم اس کے پاس زیادہ ہے، انگلی پر وہ آپ کو نچائے گا۔ عورت کو دیکھنے کی تین چیزیں ہیں، دیکھیے سیرت کیسی ہے، صورت کیسی ہے، عبادت کیسی ہے۔ اگر صورت میں ایک نمبر، سیرت میں ایک نمبر، عبادت میں ایک نمبر، تو سارے جہان میں ایک نمبر عورت۔ ہماری عورت ہے ایک حور ہے، دونوں میں خوبصورت کون ہوگی؟ تو لکھا ہے دنیا کی عورت زیادہ خوبصورت ہوگی۔ تو وہ کیسے؟ حور نماز نہیں پڑھتی ہے، دنیا کی عورت نماز پڑھتی ہے۔ حور روزہ نہیں رکھتی ہے، دنیا کی عورت روزہ رکھتی ہے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے، نماز پڑھنے کی وجہ سے ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا، اس چمک کی وجہ سے حور سے زیادہ خوبصورت دنیا کی عورت ہوگی۔ ایک آدمی آیا قاضی کے پاس کہ میں شکایت لے کر کے آیا ہوں بیوی کی، مجھ کو بہت پریشان کرتی ہے۔ ایک آدمی بغل میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ جب تم کو شکایت ہے تو طلاق دے دو۔ تو اس آدمی کا جملہ سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بڑا خوبصورت ہے، زندگی بھر کام آئے۔ اس نے کہا یار تم کہتے ہو طلاق دینے کے لیے،
वो तो बहुत खूबसूरत है, उससे नफरत कैसे कर सकता हूँ? वो तो मेरे बच्चे की माँ है, उसको छोड़ कैसे सकता हूँ? जब औरत तुम्हारी बदतमीज है तलाक दे दो। अब बदतमीज जरूर है लेकिन आबरू का सौदा करने वाली नहीं है, इसलिए मैं उसको तलाक नहीं दे सकता। एक बात याद रखिए, आपके घर में घड़ी है, घड़ी में बैटरी खत्म हो गई तो उस घड़ी को देखिएगा, जहां उसका टाइम है वहीं पर रुका हुआ रहता है कांटा, लेकिन ठीक जब 9 बजेगा तो कांटा वहीं रहेगा, ठीक जब 9 बजे रात होगी तो कांटा वहीं रहेगा। वो घड़ी जो बंद है वो भी 2 वक्त में सच बोलती है, झूठ नहीं बोलती है। अब देखिएगा, रात भर दिन भर बीवी की शिकायत करने वालों को देखिएगा, यहाँ बीवी की शिकायत करेंगे, वहां बीवी की शिकायत करेंगे। अरे अल्लाह का बंदा, शिकायत क्यों करते हो? दुनिया में हर इंसान के अंदर खूबी भी है, खामी भी है। सारी खामी तो नहीं होगी, उसके अंदर 2-4 खूबी भी तो होगी। सब्र करो, अल्लाह इसका बदला देगा, उसको हिदायत देगा, टूटे फूटे घर को तुम्हारी जन्नत बना देगा। न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, रहे देखते औरों के ऐबों ने। न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, रहे देखते औरों के ऐबों हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पे जब नजर, तो जमाने में कोई बुरा ना रहा। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। घर का झगड़ा खत्म कीजिए, अल्लाह आपके घर को जन्नत बनाएगा। इतनी मोहब्बत, इतना सुकून आपको घर में मिलेगा कि बाहर आपका दिल नहीं लगेगा। ये राज आपको बता रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं। आपका जलसा निकल रहा है, सिर्फ एक पैगाम बाकी रह गया है। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी की मरने के बाद कदर करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा। शौहर बीवी से झगड़ा क्यों करता है, ये दिखा रहा हूँ। वो कहता है, यार मैं अगर अपनी माँ की बात नहीं मानता तो अच्छा था, मैं अपने चचा की बेटी से निकाह नहीं करता तो बहुत अच्छा था, मैं अपने रिश्तेदार में निकाह नहीं करता, फला जगह कर लेता तो बहुत अच्छा था। और जानते हैं उसका झगड़ा क्या है शौहर का? शौहर का झगड़ा ये है कि मेरी बीवी मेरी तरह हो जाए। गलत है, आपको हटा के फेंक रहा था ना। कभी भी बीवी हमारी तरह हो ही नहीं सकती। और ये सोच लीजिए, आप जितनी भी ताकत लगाइए, आप हमारी बीवी हमारी तरह हो ही नहीं सकती। हमारा झगड़ा क्या रहता है कि हमारी बीवी हमारी तरह हो जाए। और सास का झगड़ा क्या रहता है जानते हैं? ये मेरे घर का पैसा अपने माँ बाप के यहाँ भेज रही है, बदगुमानी है। ये मेरे बेटे पर हुकूमत कर रही है, बदगुमानी है। मैं इस घर की मालिक हूँ, मेरी बहू मेरे घर की मालिक नहीं है। इसकी वजह से सास का झगड़ा रहता है। और बहू का झगड़ा क्या रहता है? जल्दी से आपका जलसा निकल रहा है, बिल्कुल बैठ जाइए। जलसा आपका निकल रहा है, दुआ तक आपका जलसा पहुंच गया है। ध्यान से सुनिएगा। बहू का क्या झगड़ा रहता है कि मुझे बाप ने रानी बना करके भेजा है, मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ। अगर आज दब गई, ये लोग जिंदगी भर दबाएंगे। और ननद का भुजाई से क्या झगड़ा रहता है कि ये भाभी मुझको रोकने वाली कौन होती है, टोकने वाली कौन होती है? मेरी मर्जी है, मैं जहां जाऊं, जिससे बात करूं, जहां से आऊं, ये भाभी मुझे टोकने वाली कौन होती है? अब देखिए झगड़ा कैसे खत्म होगा। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? झगड़ा खत्म करने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए। बेटी की तरफदारी में दामाद को जेल भेजेंगे, हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए, इस पर भी कोई ना कोई हाथ उठा रहा है। ध्यान से सुनिएगा। शौहर अपनी बीवी से कहे कि तुम मेरे माँ बाप की खिदमत करो, मैं तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करूंगा, उसी दिन झगड़ा खत्म हो जाए। आप तजर्बा करके देख लीजिए। अगर बीवी का झगड़ा शौहर से होता है, शौहर का झगड़ा बीवी से होता है, तो शौहर अपनी बीवी से कह दे कि यार आज के बाद मैं तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करूंगा, तुम मेरे माँ बाप की खिदमत करो, उसी दिन झगड़ा खत्म हो जाए। भाभी को ननद
अपनी बड़ी बहन समझ ले, और भाभी अपनी ननद को ननद नहीं छोटी बहन समझ ले, झगड़ा उसी दिन खत्म हो जाए। सास अपनी बहू को जिस दिन अपनी बेटी मान लिया उसी दिन झगड़ा खत्म हो जाएगा। बहू जिस दिन अपनी सास को सास नहीं बल्कि माँ समझ लिया उसी दिन झगड़ा खत्म हो जाएगा। एक औरत आई ताबीज लेने के लिए, तो आमिर साहब ने पूछा कि क्यों ताबीज लेना चाहती है? कहा मेरा शौहर मुझको डांटता बहुत है, मारता बहुत है। तो कहा एक काम करो, मैं पानी पढ़ देता हूँ, जब भी तुम्हारा शौहर गाली बोले तुम मुंह में पानी रख करके बैठ जाना, कुछ नहीं बोलना। तो जब भी झगड़ा हो मियाँ बीवी में तो औरत जल्दी से जाए, झट से पानी निकाले, तो 4 घोंट लेकर के बैठ जाए, झगड़ा था। क्योंकि आमिर साहब को समझ में आ गया कि उसका हाथ चलता होगा, इसकी जबान चलती होगी। जिस दिन उसका हाथ चलना बंद हो गया, इसकी जबान चलना बंद हो गई, वही दिन वो घर जो टूटा फूटा है वो जन्नत बन जाए। सास के यहाँ दामाद आया, दामाद आकर के बैठा हुआ है कि आज मुर्गा मिलेगा खाने के लिए। सास चालाक थी, एक दिन मुर्गा खिलाएंगे, रोज दामाद खाने के लिए। सोचा आज इसका इलाज करते, कभी नहीं आएगा। खिचड़ी पका करके दे दी। अब दामाद ने जो देखा खिचड़ी, तो सर में दर्द हो गया। तो सास को कहता है डांट करके, ये मेहमान खाना है कि जेल खाना? मैं दामाद हूँ या कैदी? खिचड़ी दे दिया। सास बड़ी चालाक थी, उसने कहा बेटा खिचड़ी को बुरा भला मत कहो, ये खिचड़ी बहुत अच्छी ग़िज़ा होती है, अमीर भी खा लेते हैं, गरीब भी खा लेते हैं, किसी का पेट खराब नहीं होता। समझ में आ गया मुर्गा बचाने की प्लानिंग है। तो दामाद ने कहा कि अम्मा खिचड़ी तो खिला रही हो लेकिन घी तो ला करके दो। अब बुढ़िया जो छुपा करके घी रखा था ला करके ढक्कन खोला तो हाथ में हरकत थी, घी ज्यादा पड़ गया। अब बुढ़िया को लालच हो गया कि सारा घी तो दामाद ही खा जाए। मंतिक से बुढ़िया ने कहा कि बेटा अकेले खाओगे बरकत नहीं होगी, साथ में शामिल कर लो, बरकत ही बरकत होगी। समझ में आ गया ये पूरा खाने खिला नहीं सकती है, खाने देगी नहीं। तो कहा तो आप तो मेरी माँ हो, खा लो साथ में। बुढ़िया ने प्लेट को देखा तो दामाद की तरफ घी ज्यादा, अपनी तरफ कम है, दिमाग लगाया इस घी को टानना है अपनी तरफ। अब बेटा मैं तुमसे नाराज हूँ, तुमने मेरी बेटी को फला महीना में फला हफ्ते में ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, सारा घी रखा। दामाद भी उसी सास का था, समझ में आ गया कि बुढ़िया बहुत चालाक है। तो दामाद ने कहा कि अम्मा कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता। अगर मैंने वो दुख दिया है, वो दुख दिया है, वो दुख दिया है, तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया, सारा घी रखा लिया। सुख को मिलाना पड़ता है तब जिंदगी कटती है। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है। अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है, गालियां कोई दुआ कोई दिया करता है। अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है। अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं। रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। आखिरी पैगाम देकर के मैं आपके जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जलसे का आखिरी खुलासा है जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आखिर में कबूलियत की घड़ी में दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह पूरे जलसे को कबूल फरमाए, हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। इस्राइल अलैहिस्सलाम हजरत याकूब के पास आए, कहा कि भाई आप रूह कब्ज करते हो? तो कहा कि हाँ करते हैं। कहा कि मेरी रूह जब कब्ज करने के लिए आना तो पहले बता देना। हजरत इस्राइल आ गए रूह कब्ज करने के लिए। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा यार तुम अजीब आदमी हो, हमसे वादा किए थे कि रूह कब्ज करने से पहले बता देंगे, बताया नहीं। 3 मरतबा बताया। आपके काले बाल सफेद हो गए, मेरा कासिद था। आपकी